Hi my study fighters, कैसे हैं आप सब? What's up guys? So warm welcome to all of you. This is an Academy channel. My name is Seema Priya. I'm your science educator guys. So let's start the today's session. So today we will do this chapter, weather, climate and adaptation. So I'm starting the session with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So if we talk about the Telegram, guys, this is very important for all of us because हम एक दूसरे से connect इसके through हो पाते हैं. आपको सारे updates यहीं से मिलते हैं. सारे sessions कौन से होने वाले हैं, everything you will get from here. फ्री क्लासेस की, स्पेशल क्लासेस की बात करें गाइस, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. और आपको शायद पता होना चाहिए कि फ्री स्पेशल क्लासेस आर आल्सो देयर इन एन अकेडमी, जहां पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप. फ्री टेस्ट सीरीज आर आल्सो देयर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, सो आपको ये टेस्ट सीरीज भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. वी टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन. सो हियर यू आर गेटिंग इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, interactive live classes, live tests and quizzes, structured courses and PDF files. In Iconic subscription, guys, whatever you are getting in plus subscription, it is included here. And other than that, here you are getting personal mentor, live doubt solution. Okay. So for plus subscription, guys, you have to pay accordingly. For respective month, you have to pay this much. It is given to all of you, and it's very reasonable and very good for all of you. काफी अच्छा chance है आपका, बहुत interesting way में आपको पढ़ने का. ठीक है. And if we talk about the Iconic subscription, here it is given for all of you. Please try it, guys. Now if we talk about the Telegram channel, so this is the channel बच्चा, ये channel का link है. You can use this link और आप इस link को use करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी के जितने भी ग्रुप्स हैं आप वहां पे ऐड हो सकते हो. प्रैक्टिस सेक्शंस भी है आप लोगों के लिए, सो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए. Next is, guys, don't forget to use my code. My code is SEEMA10. You will get 10% extra discount. So now I'm going to start the chapter weather, climate and adaptation of plants and animals, guys. So I'm starting with weather. What do you mean by weather? So weather of a place can be defined as the measure of its daily atmospheric conditions such as humidity, temperature, lightning, events, rainfall, storms, snow and so on. वेदर मतलब होता है गाइस, जो आपको बहुत ही जल्दी जो मौसम में बदलाव आता है, चेंज आता है, दैट इज योर वेदर. लाइक अभी अगर गर्मी चल रही है, सो दिस इज अ क्लाइमेट. बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे आवर्स के अकॉर्डिंग देखें या डेज के अकॉर्डिंग देखो कि आज बारिश का मौसम है, आज कल जो था बिल्कुल क्लियर मौसम था, आज क्लाउडी है. तो ये जो आवर्स के अकॉर्डिंग या बहुत ही जल्दी जो चेंज होता है मौसम में, जो बदलाव आता है, दैट इज योर वेदर. वेदर ऑफ अ प्लेस इज दैट. ओके. सो जो आपका, और ये डिपेंड किस पे करता है, ये बिल्कुल देखा जाए तो सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सन से ही आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटनिंग इवेंट, जितने भी स्टॉर्म्स वगैरह सब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होते हैं. ठीक है. So guys, if we talk about the weather, it may be defined as a day-to-day condition. आप अगर आपको उसको easy language में लिखना है तो day-to-day जो condition होता है उसे हम कहते हैं atmosphere का, that is known as weather. ठीक है. The temperature, humidity, rainfall, wind speed, ये सब आपका weather में आता है. ठीक है. If we talk about the different elements, अगर हम elements की बात करें, weather में weather के कौन कौन से elements होते हैं, तो rainfall, temperature, humidity, snowfall, storms, winds, इन सबको मिला के ही आप वेदर में बदलाव आप कह सकते हो आता है. रेनफॉल है तो इसका मतलब आज वेदर जो है ठंडा होगा क्योंकि बारिश हो रही है. टेम्परेचर में अगर चेंज आ रहा है तो वो भी आपका वेदर का में इंक्लूडेड है. ह्यूमिडिटी भी उसी में है, स्नोफॉल भी उसी में, स्टॉर्म, विंड, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वेदर, इनको हम एलिमेंट्स कहा कहते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है. सो ये सब हमारे एलिमेंट्स होते हैं. हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स वन बाय वन. लाइक फर्स्ट, let's talk about the temperature. What do you mean by temperature? So the weather is mainly affected by sun. जो वेदर है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? सन के. दैट आई हैव टोल्ड यू. दैट प्रोड्यूसेस हीट, क्योंकि वो ही सब कुछ करता है. हीट प्रोड्यूस कर रहा है एंड रेज द टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा. सन अगर ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो अपने आप मौसम ठंडा हो जाएगा. सन प्रोवाइड्स लाइट, लाइट भी, हीट, सब कुछ प्रोवाइड जो है आपका सन करता है. इसीलिए इसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है. दैट्स वाई गाइज, इसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? वाई वी कॉल इट एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इससे यही जो है हर एक चीज के लिए कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली थिंग जिसपे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट आ रही है इट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ओशियन है, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर में, ठीक है। therefore it is clear that I hope कि आपको एक क्लियर हो गया होगा that change in weather, जो भी बदलाव आ रहा है is due to the sun। तो याद रखना वेदर में कोई भी बदलाव आता है वो बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेन है आपका इंपॉर्टेंट वो है आपका सन, बिकॉज द चेंजेस अकरिंग इन द सन्स हीट विल चेंज द एटमोस्फेयर। क्योंकि जो एटमोस्फेयर में जो बदलाव आ रहा है, चाहे वो ह्यूमिडिटी में बदलाव आए, चाहे वो टेम्परेचर में बदलाव आए, चाहे वो रेनफॉल में बदलाव आए, सब कुछ कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, सन की हीट पे या सन पे। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंजेस। पूरे ईयर में आप देखते होंगे कि सनराइज और सनसेट का टाइम भी आपका चेंज होता रहता है। Understood? Now next is if we talk about the maximum temperature and minimum temperature. Maximum temperature क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स किसी एक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया, मतलब एक पूरे दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर का, वो तो हमेशा वो आफ्टरनून का मेजर किया जाता है। और मिनिमम टेम्परेचर हमेशा अर्ली मॉर्निंग का किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी आपके आज के टाइम में फोन में एप्स है, प्लस अगर आप जाके न्यूज देखोगे, न्यूज में भी आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दोनों गिवन होता है। क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है आफ्टरनून का लिया जाता है और मिनिमम टेम्परेचर जो है अर्ली मॉर्निंग का लिया जाता है, और उससे फिर वो मेजर करके फिर वो वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज का डाउट इंट्रोड्यूस हुआ है अनअकैडमी में, आपको पता नहीं, आपने शायद ट्राई भी किया होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जब इसे ओपन करोगे अनअकैडमी लर्निंग, आपको आपको आज का डाउट का एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मिलेगा, यू हैव टू क्लिक इट। जब आप क्लिक करोगे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, लुक एट हियर, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है क्या, किसी भी बुक से किसी भी जगह से अगर इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गेटिंग एनी क्वेश्चन और नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, so what you have to do, you have to click and you have to crop it, crop करके you have to paste it here। जब आप इसे पेस्ट कर दोगे यहाँ पे, तो आपको पेस्ट करने के बाद you will get the solution within 3 hours। can you think कितना अमेजिंग है ये, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि अब आप लोगों को अनअकैडमी जो है ये इतनी अच्छी चीज प्रोवाइड कर रही है कि अब आपके जितने भी डाउट्स हैं अगर वो क्लास में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं लाइव क्लासेस में कि टीचर्स जो है सभी एजुकेटर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। सो आपका ये बहुत अच्छा काफी अच्छी चीज है, आप सबके लिए काफी बेनिफिशियल है, वीडियो फॉर्म में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज योर रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉल बैक ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स वापस आके गिरी आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ वाटर, पानी जो है वो भाप बनता है, दैट इज योर एवोपोरेशन। और भाप जब पानी वापस बनता है दैट इज योर कंडेंसेशन। तो आपको पता है कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये तो शायद मेरे हिसाब से आप लोगों ने पहले ही किया हुआ है, आपने बहुत ही मतलब क्लास 6 में भी है ये, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो जो भी पानी जो एटमॉस्फेयर में पानी है, लाइक अगर वो सी वाटर है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है या कहीं पे भी पानी इकट्ठा है, जब वो भाप बनता है, भाप बन के वो एटमॉस्फेयर में, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, तो जब पानी भाप बनता है तो एटमॉस्फेयर में एक हाइट पे इट राइजेस अप। जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, भाप वापस पानी बनता है और वो फिर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ के क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। और जब वो क्लाउड जो है काफी ज्यादा हेवी हो जाता है, काफी ज्यादा उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो वो फिर बस्ट हो जाता है, उससे जो पानी है फिर वो रेन के रूप में हमारे एटमोस्फेयर में आती है। सो व्हेन द टेम्परेचर इज टू लो, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, सो वही जो बारिश का वही जो पानी भरा हुआ है क्लाउड्स में, जो क्लाउड्स पानी के रूप में नीचे आएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो वो पानी जो है वो फिर आपका नीचे जो है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में आता है, फ्रीज फॉर्म में आता है, क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म में आता है, उसी को स्नोफॉल कहते हैं। वो एक्चुअली में क्लाउड से ही निकल रहा है,
लेकिन है क्या, जब बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर था तो जो बारिश के लिए जो पानी क्लाउड में इकट्ठा था वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, जम गया वो। और फिर जब वो एटमोस्फेयर में नीचे आएगा तो वो आपका किस फॉर्म में आएगा, वो आपका स्नो फॉर्म में आएगा। ठीक है। ड्यूरिंग विंटर आपने देखा होगा ठंड के टाइम में द टेम्परेचर फॉल्स, अचानक से टेम्परेचर कम हो जाता है आफ्टर सनसेट। जैसे सनसेट होता है, जैसे सूर्य डूबता है, आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, कॉजिंग कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है ना उसका कंडेंसेशन हो जाता है, और वही ड्रॉपलेट्स जो है हमारे एयर में हैंग करते हैं, जो कि फॉग। आपने देखा होगा ना ठंड में, जैसे जैसे छह बजते हैं, 6:30, आफ्टर 6:30 यू कैन सी दैट फॉग अराउंड यू, पूरे चारों तरफ आपको फॉग नजर आना शुरू होता है। रीजन यही है। रीजन क्या है, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, एटमोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो शाम के वक्त अचानक से गिरता है, तो जो पानी जो है वो भाप बना है एटमोस्फेयर में, ऊपर की तरफ एक हाइट तक गया है, वो वापस पानी बन जाता है। और वो जो पानी बनता है तो वो हमारे एयर में ना हैंग, लटकने लग जाता है। दी ड्रॉपलेट हैंग इन द एयर, एयर में लटकता है, उसी से फिर फॉग फॉर्म होता है, वही हमारा फॉग होता है। इज दिस क्लियर, कोई डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी इट इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो हमारा ह्यूमिडिटी होता है, विच कॉजेज डैम्पनेस ऑफ एयर। ठीक है। एयर हैज द एबिलिटी टू होल्ड सर्टन, हवा के पास ना एक आप कह सकते हो पावर है, एबिलिटी है, शक्ति है कि वो कुछ थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है। सो अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है गाइस। ठीक है। सो सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो उसके पास, एयर के पास एबिलिटी होती है कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को वो होल्ड कर सकता है। सो द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इंक्रीजेस द राइज इन टेम्परेचर। जब वो हवा पानी को, भाप को या पानी को वो जब होल्ड करके रखता है, उससे अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड फॉल इफ हैवी रेन अकर्स, और फिर वो सीधे टेम्परेचर कम हो जाता है अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो। सो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, कितना कहते हैं वेपर, या कितना एयर में कितना मॉइस्चर है, मतलब कितना पानी, गीलापन है, पानी की कितनी मात्रा है एयर के साथ। सो वो ह्यूमिडिटी। देखा, चिपचिपी आपको गर्मी होती है, गर्मी में आजकल नॉर्मल गर्मी हो तो दैट इज ओके, बट चिपचिपी जो गर्मी होती है, हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सो ह्यूमिडिटी जो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, जिसमें दो थर्मोमीटर्स होता है, उसी से हम मेजर करते हैं। द बल्ब ऑफ वन थर्मोमीटर इज वेट एंड द अदर इज ड्राई, एक का वेट होता है, दूसरे का ड्राई होता है। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द विंड स्पीड, अगर मैं विंड स्पीड की बात करूं, सो विंड स्पीड क्या, इट इज बेसिकली कॉज टू द डिफरेंस इन आपका एयर प्रेशर। ये वाला चैप्टर मैंने आपका विंड स्टॉर्म वाला चैप्टर ऑलरेडी आई हैव टेकन दैट। ठीक है, मैंने ये चैप्टर लिया है, मैंने आपको समझाया भी है लास्ट जो मेरा सेशन था, रिकॉर्डेड सेशन। इफ यू वाज नॉट देयर, इफ यू हैवंट सीन दैट, इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट, प्लीज गो एंड वॉच इट। ठीक है। होता क्या है, विंड स्पीड क्या है, विंड बेसिकली, विंड के ब्लो करने का रीजन क्या है, बहने का रीजन क्या है, हाउ विंड मूव्स। ठीक है। हाउ विंड ब्लोज कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम में क्या होता है गाइस, द विंड ब्लोज फ्रॉम इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। जो हवा है वो इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होती है बहना, एंड कॉजेज रेन इन इंडिया, और इंडिया में काफी ज्यादा बारिश होती है सर्दियों के टाइम में। इट ब्लोज फ्रॉम माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थ इंडिया से मतलब माउंटेन से वो प्लेन्स तक आता है, और उसी की वजह से जो मौसम है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर ठंड में कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसका इफेक्ट आपको ऐसा नहीं सिर्फ कश्मीर में, उसका इफेक्ट आपको दिल्ली और बाकी स्टेट्स में भी देखने को मिलता है। सो द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज ऑन क्लाइमेट। पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है वेदर। वेदर जो है डे टू डे जो चेंजेस आता है। क्लाइमेट क्या, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो कंडीशन रहता है एटमोस्फेयर में, वेदर का कंडीशन, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है। ठंड जो है काफी महीनों तक रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा, रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा रहता है राजस्थान जैसे एरिया में, तो वो जो है वो क्लाइमेट है, वहां का हॉट एंड ड्राई जो है वो क्लाइमेट है। सो कंडीशन जो 25 ईयर से सेम आ रहा है वो हमारा क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो वहां पे कैसा क्लाइमेट है, अगर मैं किसी और स्टेट की बात करूं तो वहां कैसा क्लाइमेट है, जो काफी लंबे समय तक जो क्लाइमेट, जो मतलब वेदर जो चला आ रहा है, वेदर कंडीशन में जो जो चेंजेस हो रहे हैं लंबे समय तक सेम रहता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट का बेसिकली मतलब क्या है कि जो वेदर कंडीशन है वो सॉरी,
जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रहा, लॉन्ग पीरियड पे चेंज हो रहा है। ठीक है, आज जो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो राजस्थान का जो आपका जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई होता है। रीजन क्योंकि ये जो है आपका हॉट एंड ड्राई, ये सालों साल रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, दैट्स वाई। ठीक है, सो दिस इज योर क्लाइमेट। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इंडिया में क्लाइमेट की बात करूं, ठीक है, सो नॉर्थन रीजन लाइक हिमालय हो गया, हिमालय में हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट रहता है। लाइक कश्मीर, तो कश्मीर का कैसा होता है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है। तो वो आपका होता है कोल्ड एंड वेट, कोल्ड एंड वेट, ठीक है, ठंडा और गीलापन रहता है। इफ वी टॉक अबाउट द प्लेन्स, अगर हम प्लेन्स की बात करें, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। उत्तर प्रदेश जैसे यूपी की बात करें, केरला की बात करें तो काफी हॉट और वेट रहता है वहां पे भी। वेस्टर्न रीजन की बात करें लाइक राजस्थान में, तो हॉट एंड ड्राई रहता है। नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की बात करें, जैसे आसाम हो गया, सो एंड रिसीव्स रेन फॉर द मेजर, वो काफी ज्यादा बारिश वहां पे बहुत ज्यादा, इसीलिए वहां पे वेट क्लाइमेट रहता है। कैसा क्लाइमेट रहता है, वेट, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, therefore days are longer and night shorter, इसीलिए कहा जाता है कि जो दिन होता है वो लंबा होता है और जो रात होती है वो छोटी होती है समर के टाइम पे, जबकि दिन जो है वो छोटा होता है और रात लंबी होती है विंटर के टाइम में। ये रीजन भी यही है, दिन लंबा रात छोटी, ये समर के टाइम में होता है। देखा होगा कि समर के टाइम में आप 7-7:30 तक भी काफी ज्यादा रोशनी रहती है शाम के वक्त, लेकिन जैसे आप सर्दियों के जैसे आप विंटर में एंटर करोगे तो आप देखोगे कि रात जो है वो लंबी होने लग जाती है बहुत जल्दी, 5 o'clock, 5:30। इट्स डिपेंड कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, किस जगह पे रह रहे हो, और उसका इंडिया में कौन सी पोजीशन पे है वो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सनसेट और सनराइज होता है। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट। क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो मतलब डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं। फैक्टर्स कौन कौन फाइंड आउट करते हैं, सो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्लाइमेट। ठीक है, ठीक है, सी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, डिस्टेंस कितना है सी से, वो क्लाइमेट जो है उस पर बहुत बड़ा असर डालता है। सी से अगर बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, तो क्लाइमेट अलग होगा, सी से दूर है तो क्लाइमेट अलग होगा। तो सी से कितनी दूरी पे है कोई भी जगह, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। द प्लेसेस दैट आर नियर द सी, जो सी से पास है वो हमेशा दे आर मॉडरेट, वो हमेशा मॉडरेट रहेंगे, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। मुंबई, चेन्नई, ये सारे कुछ ऐसे स्टेट्स है आप कह सकते हो, जहां पे आप कह सकते हो कि ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस है जहां पे आप बिल्कुल भी नहीं इवन पता लगा सकते हो कि यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो, क्योंकि यहाँ पे मौसम मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ठीक है, वाइल अगर हम बाकी प्लेसेस की बात करें जो कि सी से दूर है, ठीक है, जो सी से दूर है लाइक दिल्ली, तो आपने देखा होगा वहां ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। दिल्ली एक ऐसी प्लेस है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं तो ये बचपन से एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ, जब मैं क्लास फर्स्ट में थी तब से एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ कि ठंड में इतनी ठंड कि एक इंसान सोचता है कि कितने ज्यादा लेयर्स पहने। ठीक है, और गर्मी में इतनी गर्मी की लगता है भाई कितने शॉर्ट कपड़े पहने। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सट्रीम गर्मी होता है कि उससे सिर्फ आप, अगर आप सोचोगे कि अगर आप कूलर और फैन में रह के उस गर्मी को झेल पाओगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दिल्ली की जो गर्मी होती है वो इतनी एक्सट्रीम होती है कि उसके लिए आपको एसी की जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, और बिल्कुल चिपचिपी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी। ओके, नेक्स्ट इज जो वेदर रिपोर्ट होता है जनरली कंटेन्स द वेदर रिपोर्ट क्या है, अब हमारा वेदर रिपोर्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जिसमें डे टू डे वेदर का दिया रहता है कि क्या है। और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मौसम विभाग जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है जो इस पे, जो मौसम विभाग हिंदी में कहते हैं, जो प्रिडिक्ट करता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, जो आने वाले टाइम का जो मौसम किस तरीके से रहेगा वो यही प्रिडिक्ट करता है। द वेदर रिपोर्ट इज जनरली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब में पब्लिश होता है वेदर रिपोर्ट। इज दिस क्लियर, कोई डाउट? सो वेदर रिपोर्ट इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिया रहता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब सेकेंड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन, वेदर रिपोर्ट कौन कौन से इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, 24 आवर्स पास्ट, मतलब 24 आवर्स का पूरा बता देता है वो। ह्यूमिडिटी इज मेजर ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, कितना मॉइस्चर एयर में, कितना गीलापन है, कितने पानी की मात्रा है एयर में, कितना
पानी एयर होल्ड करके रखा हुआ है, वो एक्चुअली में ह्यूमिडिटी बताता है। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना चिपचिपा मौसम होगा। ठीक है, वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल, जो वेदर रिपोर्ट है वो प्रिपेयर भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, जो गवर्नमेंट का है। इट कलेक्ट डाटा, टेम्परेचर, विंड, इन सब पे वो डाटा कलेक्ट करता है, देन उसके बाद प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, और रेनफॉल जो मेजर होता है वो रेन गॉज से होता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वेदर ऑफ अ प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग, वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे जो है वो आफ्टरनून में, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अर्ली मॉर्निंग में। ये सारे आपके की नोट्स है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये सारे जो है आपको छोड़ना नहीं है, ये इन सारी चीजों को। लाइक वेदर कीप चेंजिंग, टेम्परेचर थर्मोमीटर से किया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कब मेजर किया जाता है। ठीक है, रेनफॉल क्या है ये भी की नोट्स है। ठीक है, वेदर रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से प्रिपेयर किया जाता है, ये सब जो है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेदर। आई हैव टोल्ड यू, जो मिनट्स में, आवर्स में बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होता है। क्लाइमेट जो लंबे समय तक 25 ईयर्स से, जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो आपको पता है हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म रहती है। तो ये क्लाइमेट वहां का है। राजस्थान में हॉट एंड ड्राई है। तो अलग अलग प्लेसेस का हॉट एंड आपका कह सकते हो कोल्ड एंड वेट जो है वो आपका क्लाइमेट होता है कश्मीर का। सो ये जो है ये सब इसी पे डिपेंड करता है। हैव यू अंडरस्टूड? वेदर क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट अगर कोई सी चीज समझ नहीं आई यू कैन आस्क। ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैबिटेट। हैबिटेट नेचुरल एनवायरनमेंट क्यों बोला गया? नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जो जगह जहां आप रह रहे हो दैट इज योर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहां पे रह रहे हैं लोग। अगर मैं लायन की बात करूं, मैं टाइगर की बात करूं, अगर लायन की बात करूं, अगर फॉरेस्ट में रहे तो फॉरेस्ट जो है लायंस के लिए आपका क्या है? हैबिटेट है। सो हैबिटेट का मतलब होता है जहां वो लोग रहते हैं, उनका एड्रेस, जो उनकी जगह रहने की जगह है। सो वेयर आई एम सिटिंग, ऑब्वियसली मैं घर में हूं, तो ये जो घर है ये मेरा हैबिटेट है। सिमिलरली आप भी कहीं ना कहीं बैठ के मेरा ये सेशन देख रहे होंगे, तो वो सब आपका हैबिटेट है। ठीक है, सो पर्सन टू पर्सन या एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होता है। सबका हैबिटेट अलग होता है, सबका हैबिटेट सेम नहीं होता है। ठीक है, डेजर्ट, डोमेस्टिक, फार्म, फॉरेस्ट, पोलर, यूके वाइल्ड, वेटलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो जितने भी हैं ये सारे ओशन, ये सब क्या है? ये सब आपके हैबिटेट है। ये सब आपकी क्या है? हैबिटेट है। कोई डाउट यहां तक? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स। अगर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो सर्टेन हैबिट्स व्हिच एनेबल्स अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडैप्टेशन। उसे हम अडैप्टेशन कहते हैं। अडैप्टेशन का मतलब क्या है? अपने को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेना, दैट इज योर अडैप्टेशन। ठीक है, अब एनवायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, दैट इज योर अडैप्टेशन। हैव यू अंडरस्टूड? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, लाइक मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक बहुत बड़े घर में रह रहे हो, ठीक है, अचानक से किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी आपके घर में, जिसकी वजह से आपको शिफ्ट होना पड़ा एक छोटे से घर में, जहां पे ना एसी है ना प्रॉपर बेड है, आपको एक छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे? आपको पहले हफ्ता, दूसरा वीक, तीसरा वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है रहने की, मैं कैसे। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि आपको वो घर भी अच्छा लगेगा। रीजन है क्योंकि आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ढाल लिया एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कैक्टस प्लांट की, तो कैक्टस प्लांट रेगिस्तान में भी उग जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में जो है नॉर्मली प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते, क्योंकि वहां पे स्कैर्सिटी वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन कैक्टस तो उग रहा है, क्योंकि वो बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता है, जी सकता है। ठीक है, ये सब अडेप्टेशन का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा अडेप्टेशन भी यही है, हम अपने आप को अडेप्ट कर ले एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज योर अडेप्टेशन, ढाल लेना। पोलर रीजन में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन ये फिर भी पेंगुइन्स की बात करें, पोलर बियर्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं
जो वहां पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, नॉर्मल जीते हैं। रीजन क्या है? उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ढाल लिया एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। अलग अलग एनिमल्स की बात करें सो वो अडेप्ट जो है वो अलग अलग वेज में करते हैं। अगर मैं अडेप्टेशन की बात करूं शॉर्ट टाइम में, सो अडेप्टेशन शॉर्ट टाइम में कभी नहीं हो सकता, दैट आई हैव टोल्ड यू। कोई चाहेगा कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया और वो 2 दिन के अंदर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले सब कुछ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर वो अडेप्ट कर रहा है तो उसको कुछ टाइम की जरूरत पड़ेगी, कुछ टाइम उसको लगेगा अडेप्ट करने में। इतने जल्दी वो किसी भी चीज को अडेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो किसी भी चीज को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता कोई भी चीज। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन की बात करें, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स व्हिच इंप्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल। अब एबिलिटी की बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो सर्टेन फीचर्स को इंप्रूव कर सके, चांसेस ऑफ सर्वाइवल, मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना। वो आपको पता है हर जगह वही चीज है, ऐसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही एनिमल्स जो है, प्लांट्स जो है, इवन हम लोग भी अडेप्ट करते हैं। ठीक है, सो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर प्लेस में रह रहे हैं, वहां उन सबको क्लाइमेट बहुत बुरी तरीके से उन पे इम्पैक्ट डालता है अपना। एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, कोई भी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, अडेप्ट देमसेल्व्स सो दैट दे कैन सर्वाइव। वो अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं कि वो उस जगह पे सर्वाइव कर सके। 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो 50 डिग्री टेम्परेचर में आप सोचोगे आपको बहुत प्यास लगी कि आपके पास कूलर नहीं है, आपके पास फ्रिज नहीं है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। उस टाइम पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनीवन, बट वो धीरे धीरे वो कर लेता है। गांव के लोग अभी भी कुएं का ही पानी पीते हैं, आपको पता है, उन लोगों के पास कोई फ्रिज नहीं है। बट हाउ हाउ दे डू इट? ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, अडेप्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग। फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स स्टार्ट टू चेंज। ऑब्वियसली क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, प्लेस टू प्लेस, ये जो है हैबिट्स जो है वो चेंज होता रहता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ कंडीशंस इन व्हिच दे लिव। उनको जिंदा रहने के लिए एनिमल्स को अडेप्ट करना ही पड़ता है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पॉजेस स्पेशल फीचर्स लाइक पोलर बियर। अगर मैं पोलर बियर को सोच रही हूँ कि मैं उसको वहां से उठा के मैं उसको रेगिस्तान में ले जाके छोड़ दूं, और मैं सोच रही हूँ कि नहीं वो अडेप्ट कर लेगा, बिल्कुल अडेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं। नॉर्मल हमारी जब इतनी पतली स्किन है तो हम गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो वो पोलर बियर कैसे करेंगे? तो हर एक इंसान को इसी तरीके से बनाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड में अपने आप को उस तरीके से ढाल ले, प्रोटेक्ट कर ले। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उन लोगों को प्लेस दे दिया गया है। ठीक है, कैमल को दे दिया गया डेजर्ट, ठीक है, कि आप रेगिस्तान में रहो। पोलर बियर को पोलर रीजन दे दिया गया है। अगर हम बात करेंगे पैंगुइन्स को, उनको पोलर रीजन दे दिया गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को दे दिया गया है कि आप वहां रह सकते हो, क्योंकि वो सबसे सही होता है, वहां पे सब लोग बहुत इजीली और अच्छे से रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए गाइस तो उनके अकॉर्डिंग उन लोगों को बांट दिया गया है। ठीक है, अगर मैं कैमल की बात करूं तो कैमल का यहाँ पे इसके ऊपर भी वूल और फर होता है, बट वो वैसा नहीं होता है, इसके पैडेड बहुत थिक होते हैं, क्योंकि ताकि वो रेगिस्तान में जो रेत गर्म रहता है उसमें वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से चल सके, उनको इतना ज्यादा वो गर्म फील ना हो। ठीक है, आई लैशेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वहां की जो रेत उड़ती है वो उनके आईज में ना चली जाए। हम तो अपने आईज को अपने हैंड से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे, रिंस कर लेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे कैमल? दैट्स वाई इनका पूरा बॉडी फीचर इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और ये हम्प होता है जहां पे स्टोर रहता है क्या, फैट, पता है आपको? नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस माइग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है रेगुलर सीजनल जर्नी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दैट इज योर माइग्रेशन। आप आज यहाँ पे रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कल आप मध्य प्रदेश चले जाओगे, कल आप महाराष्ट्र चले जाओगे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो आप जा रहे हो, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली क्यों होता है? माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेट क्यों करते हैं, चाहे वो फिशेस, किसी भी तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स, कोई क्यों करेगा माइग्रेशन? क्योंकि जो आप, अगर आपको हार्श हार्श कंडीशन है, वो कंडीशन आपसे नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर उस जगह पे आप नहीं रह पा रहे हो, कंडीशन एडवर्स हो चुकी है, खराब हो चुकी है, सो इन दैट कंडीशन गाइज आप माइग्रेट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा नहीं है। सो फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, इन सबके
के लिए बेसिकली माइग्रेशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हुई हूँ, अरे यार ये तो अच्छी जगह नहीं है, चलो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। लोग ऐसा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके रीजन होते हैं बिना मतलब विदाउट एनी रीजन दे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ऐसे बहुत ही कम आप ज्यादातर जो लोग होते हैं बेसिकली माइग्रेशन होता ही है फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर। इन सब के सर्च के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो दैट इज योर माइग्रेशन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं? मेनी फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, लाइक क्लाइमेट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ड्रॉट हो गया, कहीं सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने के बाद भाई वहां पे फसलें नहीं उग रही हैं, क्रॉप्स नहीं उग रहे। अब आप क्रॉप्स नहीं उग रहे होंगे तो एक इंसान को खाना कैसे मिलेगा, पानी कैसे पिएगा, छत नहीं होगी। ठीक है, शॉर्टेज हो गई फूड शेल्टर की, इन सब की। सो डिजास्टर हो गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया। सो ये सारे डिजास्टर्स के केस में भी माइग्रेट करते हैं। एक लोग जो लोगों का जो झुंड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, सपोज करो कोई एक सर्टेन पार्क है, उस पार्क में जो कुछ एनिमल्स हैं वो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो वहां पे चर रहे हैं। ठीक है, ग्रेज कर रहे हैं। सो कुछ टाइम तक अगर काफी ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स वहां ग्रेज करते रहेंगे, वहां की जितने भी प्लांट्स और जितने भी हैं ग्रीनरी सब खत्म हो जाएगी। सो अब उनको खाना नेक्स्ट सीजन में भी चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, वो वहां से, क्योंकि इतने जल्दी तो उनको नहीं मिलेगा, सो वो उस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं जहां उनको फूड मिले। ठीक है, सो वो डेफिनेटली माइग्रेट करते हैं और फिर वापस जब वहां पे कंडीशन प्रॉपर हो जाती है तो वो वापस आ जाते हैं। बर्ड्स की बात करें, सो माइग्रेटरी इंस्टिंक्ट इज क्लोजली लिंक्ड टू द साइकिल ऑफ एनलार्ज्ड एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लाइक स्प्रिंग के स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं वो लोग, कई सारे ऐसे टाइप्स के बर्ड होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, देन फिर वापस वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। दीज आर सेवरल स्पीशीज ऑफ द बर्ड दैट माइग्रेट टू लॉन्ग रेंजेस, दूर दूर तक जाते हैं, फ्लाइंग टू द नॉर्थ इन द स्प्रिंग टाइम टू ब्रीड। स्पेशली बेबी को बर्थ देने के लिए, ब्रीड करने के लिए इन द वार्म वार्म गर्मी वार्म कंडीशन में, इसीलिए वो लोग स्प्रिंग टाइम में वो लोग वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, देन फिर उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिन अपनी जगह पे आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हम देखें तो जो आपका माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जा रहे हैं, वो या फिर कोई डिजास्टर आ गया हो, या फिर कोई कह सकते हो कि आपका मतलब बेसिकली ये होता है फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर। अब वो किसी भी रीजन से आया हो, खाने की तलाश में, आपका पानी की तलाश में, रहने की जगह नहीं होती है। सो ये अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ड्रॉट हो, नेचुरल कैलामिटीज हो। ठीक है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, तो कोई भी रीजन कुछ भी हो सकता है। बट बेसिकली फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर, जब कोई एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। आई होप कि आपको पूरा सेशन समझ आ गया हो। आई होप यू ऑल हैव लाइक द सेशन। ठीक है, so thank you so much guys for watching my session. My code is SWEMA10. Don't forget to like, subscribe and share guys. आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और मेरा कोड भी यूज करना है। सो व्हाट द थिंग्स वी हैव डन टुडे, क्या क्या हमने किया है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया है आज वेदर। ठीक है, सो वेदर क्या है आपका, वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन जो होता है मौसम में, जो डे टू डे घंटे मतलब आवर्स के अकॉर्डिंग, मिनट्स में, या बहुत जल्दी जल्दी जो बदलाव आता है, दैट इज योर वेदर। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा क्लाइमेट। ठीक है, सो क्लाइमेट क्या है, ये भी मौसम का पार्ट है, बट वो मौसम जो लंबे समय में चेंज होता है, लाइक 25 ईयर से जो मौसम, लाइक हॉट एंड ड्राई। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, ठीक है, तो राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है हॉट एंड ड्राई होता है। क्यों इसका कहा गया है कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट है, क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 25 ईयर से उससे भी ज्यादा सालों साल वहां पे हॉट एंड ड्राई मौसम ही रहता है, इसीलिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लाइमेट के बाद हमने हैबिटेट पढ़ा। ठीक है, सो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वो जगह होती है गाइस जहां पे कोई भी रहता है। हैबिटेट इज द प्लेस, इट्स द प्लेस। ठीक है, वेर एनीवन लिव्स। ठीक है, कोई भी वहां रहता है, दैट इज योर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब वो जगह जहां आप रहते हो। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में कोई रह रहा है, पोलर रीजन में कोई रह रहा है, हम अपने घर में रह रहे हैं, तो ये सब हम तो पर्सन टू पर्सन, एनिमल्स और प्लांट्स के अकॉर्डिंग सबका हैबिटेट डिफरेंट होता है, सबका हैबिटेट सेम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा अडेप्टेशन। ठीक है, सो आई होप कि अडेप्टेशन आपको समझ आ गया हो। अडेप्टेशन जो है बेसिकली आपका
कह सकते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने आप को ढाल लेना। अगर इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, आप देख सकते हो यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो कि सर्टन हैबिट्स या कुछ ऐसे जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक पर्टिकुलर एक जगह पे रहने के लिए उनको क्या करते हैं, अनेबल, वो रह पाते हैं जिन फीचर्स की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे, दैट इज योर अडेप्टेशन। हिंदी में बोला जाए अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेना। अगर मैं ठंड में रहने वाली हूँ तो मैं अचानक से मुझे किसी गर्म प्लेस में आना पड़े, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। सपोज करो इफ आई एम फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर में टेम्परेचर हमेशा वेट एंड कोल्ड रहता है, मुझे वहां से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। दिल्ली में आई मैं, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ मंथ, शायद ईयर भी लग सकता है, मुझे बहुत ही मुश्किल होगा वहां सर्वाइव करना, क्योंकि वहां मैं जहां से आई हूँ वहां पे टेम्परेचर बहुत ही ठंडा और बहुत वेट रहता था। बट यहाँ पे तो आपको पता है कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में बहुत ज्यादा गर्मी और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली में। सो ऐसे केस में क्या होता है, अडेप्टेशन ही हमारी हेल्प करता है, हम अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। बट वो इतनी जल्दी नहीं होता अडेप्टेशन में, शॉर्ट पीरियड में अगर आप अडेप्ट करने की सोच रहे हो, सो दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट, इट्स नॉट ट्रू। Nobody can adapt themselves within 2 days, within a month. It's not possible. या कई लोग कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा अगर चेंजेस नहीं मिलते, बट ज्यादातर जो है, कुछ लोग होते होंगे जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, पर मैं 90% लोगों की बात कर रही हूँ, वो अडेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लास्ट आपको पढ़ाया है वो है आपका माइग्रेशन, ठीक है। सो माइग्रेशन जो था आज, आई होप कि आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आपको इनमें से कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी होगी यू कैन आस्क, ठीक है। सो माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन इज द प्रोसेस जहां पे कोई भी कह सकते हो कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, हम लोग हो गए, हम एक जगह से दूसरे, लाइक कोविड जब आया, ठीक है, ये कोरोना ने पूरा दहशत मचा रखा है हर जगह, तो लोग कोविड की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। अब तो इसकी काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कोविड थोड़ा सा कंट्रोल में है, अभी भी उतना नहीं है, बट एक टाइम पे जब बहुत ज्यादा था तो लोगों को था कि उनको एक उस जगह से निकलना है जहां पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। सो माइग्रेशन जो है, लोग बेसिकली फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर, इन सब के लिए जब एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं, दैट इज योर माइग्रेशन, ठीक है। कुछ ऐसे ब्रीड भी, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं गाइस जो कि आपकी स्प्रिंग सीजन में आप देखा जाए तो बहुत ही दूर दूर तक वो बेसिकली स्प्रिंग टाइम में ही वो ब्रीड करने के लिए, सिर्फ एग ले करने के लिए, या फिर अगर बेबी को बर्थ दे रहे हैं उसके लिए, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस माइग्रेट करते हैं, एंड देन जब ये हो जाता है तो वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो माइग्रेशन इज बेसिकली फॉर दैट। अगर कोई भी आप कह सकते हो कि नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, कोई भी मतलब कुछ ऐसी चीज आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए या फिर कुछ भी इस तरीके के कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्लाइमेट में भी फैक्टर्स आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, शेल्टर, फूड शॉर्टेज, किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए, उस कंडीशन में भी इंसान माइग्रेट करता है। सो ये सारे टॉपिक समझ आ गए हैं। Okay, guys, thank you so much for watching the session. I hope you all have enjoyed the session. So tomorrow I will come with the rest of the topics, कि polar region में क्या है, रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे किस तरीके से होता है, चाहे मैं लॉन्ग टेल आपकी बात करूं, अगर मंकी की मैं बात करती हूँ, मैं फ्रॉग की बात करती हूँ, सो रेड आई फ्रॉग जो होता है उनमें अडाप्टेशन कैसे होता है, सो ये सारा जो है, ये सारे टॉपिक्स मैं कल कवर करूंगी। टुमारो आई विल कवर ऑल द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। So till then guys, thank you so much for watching the session. Love you guys. Have a nice day तो नहीं कहा जा सकता. So bye bye guys. Love you. ओके, सीमा मैम कल फिर मिलती हैं आपसे एक और नए प्रीमियर के साथ। एंड गाइस, इट्स अ प्रीमियर, सो डोंट थिंक कि मैम इज इग्नोरिंग एनीवन। मैम इज नॉट इग्नोरिंग एनीवन, और मैम किसी को इग्नोर कर भी नहीं सकती अपने स्टडी फाइटर्स को। ओके, सो ये प्रीमियर था, ठीक है। कल फिर एक और सेशन के साथ मैं आने वाली हूँ प्रीमियर के साथ, सो गेट रेडी फॉर that session. You all have to come and join my all the sessions guys. आज के टाइम में रेगुलर बेसिस पे मैं जितने भी सेशंस ले रही हूँ, all have to come and join my sessions. Thank you so much. Bye bye.